ایران کا اسرائیل پر بڑا فضائی حملہ، 200 سے زائد ڈرونز اور میزائل فائر، تل ابیب اور بیت اللحم میں دھماکوں کی آوازیں، اریحہ میں بھی سائرن بج اٹھے، ملٹری بیس کو بڑا نقصان، ملک بھر میں تعلیمی سرگرمیاں معطل، امریکہ کی جانب سے کئی ایرانی ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ، میزائل مسلسل ہماری حدود میں گر رہے ہیں، ترجمان اسرائیلی فوج، اسرائیل کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب۔ نصف درجن سے زائد میزائلوں نے اپنے اہداف کو ٹھیک نشانہ بنایا۔ 1 اپریل کو جس بیس سے دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر حملہ کیا گیا تھا اسے تباہ کر دیا گیا، کارروائی صہیونی دہشت گردی کے جواب میں کی۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت ایران اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے، تہران کا امریکہ کو معاملے سے دور رہنے کا انتباہ، آبنۂ ہرمز میں اسرائیلی مال بردار جہاز بھی قبضے میں لے لیا۔ امریکہ کی جانب سے اسرائیل کی مکمل حمایت کا اعلان، اسرائیل پر ایرانی حملے کے بعد صدر جو بائیڈن تمام مصروفیات ترک کر کے وائٹ ہاؤس پہنچ گئے، اعلیٰ حکام کے ساتھ ہنگامی ملاقات، مشرق وسطیٰ میں مزید کمک بھیجنے کا اعلان، امریکہ ایران کے خلاف اسرائیل کی جوابی کارروائی کی مخالفت کرے گا، امریکی صدر کا اسرائیلی وزیر اعظم کو ٹیلی فون۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کا مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار، ایران اسرائیل کشیدگی خطے اور عالمی امن کے لیے تباہ کن ہوگی، انتونیو گوتریس کی دونوں ملکوں سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی درخواست۔ پاکستان کا مشرق وسطیٰ میں جاری پیش رفت پر گہری تشویش کا اظہار، پاکستان کی صورتحال پر نظر ہے، پاکستان کئی ماہ سے خطے میں بگڑتی صورتحال اور غزہ میں جنگ بندی کے لیے بین الاقوامی کوششوں کی ضرورت پر زور دیتا رہا ہے، تمام فریقین سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ انتہائی تحمل کا مظاہرہ کریں اور کشیدگی میں کمی کی طرف بڑھیں، ترجمان دفتر خارجہ۔ برطانیہ، چین، سعودی عرب، مصر، فرانس، جاپان، جرمنی، کینیڈا، ارجنٹائن اور یورپی یونین کا اسرائیل پر ایران کے میزائل اور ڈرون حملے پر سخت تشویش کا اظہار، متعلقہ فریقوں پر ضبط و تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور، مشرق وسطیٰ کا خطہ مزید عدم استحکام کا شکار ہو سکتا ہے، عالمی برادری خطے میں امن و استحکام کے لیے تعمیری کردار ادا کرے۔ ایران کا اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے صدر کے نام خط، اسرائیل پر حملہ قانونی اور منصفانہ ہے، اسرائیل جارحیت کے خلاف اپنے دفاع میں حملہ کیا، ایک ذمہ دار رکن کی حیثیت سے ایران اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کے اصولوں پر کاربند ہے، تہران خطے میں کشیدگی یا تنازعات کا خواہاں نہیں، اقوام متحدہ میں ایرانی مشن۔ غزہ پر اسرائیلی بربریت کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری، غزہ کے مختلف مقامات پر اسرائیلی حملے، 19 فلسطینی شہید، 200 سے زائد زخمی، مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی سیٹلرز کے فلسطینیوں کے گھروں پر حملوں کا سلسلہ جاری، حملوں اور جھڑپوں میں 19 فلسطینی زخمی۔ پاکستان میں بیساکھی میلے کا آغاز، دیسی مہینہ بیساکھ بہار کے موسم کی علامت ہے، بیساکھی پیار، محبت اور خوشیاں بانٹنے کا رنگارنگ تہوار کا نام ہے، ہمیں فخر ہے کہ پاکستان مختلف عقائد اور ثقافتوں کا ایک خوبصورت امتزاج ہے، پاکستان اقلیت اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے، صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی بیساکھی کے موقع پر سکھ برادری کو مبارکباد۔ پاکستان پیپلز پارٹی آج گڑھی خدا بخش میں جلسہ کر رہی ہے، جلسے سے پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور مرکزی قیادت خطاب کرے گی، جلسہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کے سلسلے میں کیا جا رہا ہے، اس دن کو نئے عزم کے ساتھ بھٹو کے نظریے اور اصولوں سے اپنی وابستگی کا اعادہ کرنے کے لیے بروئے کار لائیں، بلاول بھٹو زرداری۔ سعودی عرب کی جانب سے چاغی میں ریکارڈک منصوبے میں $1 ارب تک کی سرمایہ کاری آئندہ ماہ متوقع، خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل رکاوٹیں دور کرنے کے لیے سرگرم، سعودی عرب پاکستان میں معدنیات کے شعبے میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کرنے کا خواہش مند۔ ملک کے بالائی اور جنوبی علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش، مختلف حادثات میں 10 افراد جاں بحق، این ڈی ایم اور متعلقہ اداروں کو متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت۔
पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बालाई सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद बारिश की पेशगोई, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। गवादर के इलाके फेस्टनी में बारिश ने तबाही मचा दी। बारिश का पानी घरों और मेन बाजार की दुकानों में दाखिल। उमाड़ और इसके गिरदोनवाह के पहाड़ी सिलसिले में शदीद बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। मकरान कोस्टल हाईवे ट्रैफिक के लिए बंद। ईद उल फित्र अपने प्यारों के दरमियान गुजारने के बाद परदेसियों की वापसी का सिलसिला जारी। मोटरवे पुलिस की ओवरलोडिंग और ओवरचार्जिंग के खिलाफ खुसूसी मुहिम। ओवरलोडिंग और ओवरचार्जिंग की सूरत में भारी जुर्मानों के साथ साथ मुसाफिरों को जायद लिया गया किराया भी वापस करवाया जा रहा है। भारत में इंतखाबात से कबल मीडिया के जरिए प्री पोल रिगिंग। मोदी मीडिया बीजेपी के प्रोपेगेंडा मिशन पर। भारतीय मीडिया पर दिखाया जाने वाला मोदी सरकार का चेहरा हकीकत के बिल्कुल मनाफी। मोदी हुकूमत ने इंतखाबात में कामयाबी के लिए भारत को इंतहा पसंदी का गढ़ बना दिया। इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में इजाफा। भारत में ईसाई मिशनरी स्कूल हिंदुत्व नजरिए की भेंट चढ़ने लगे। मसीही तालीमी इदारों पर मोदी हुकूमत की बिला जवाब पाबंदियां। गिरजाघरों की खती रकम भी बीजेपी हड़प कर गई। भारतीय हुकूमत की गैर मुनसिफाना पॉलिसियों पर कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ने 13 सफ़हात पर जामे खत लिख दिया। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। 3 मैचेस रावलपिंडी जबकि 2 मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। सीरीज का आगाज 18 अप्रैल से होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल से प्रैक्टिस का आगाज करेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज वुमेन्स टीमों के दरमियान व्हाइट बॉल क्रिकेट सीरीज। वेस्ट इंडीज वुमेन्स क्रिकेट टीम कराची पहुंच गई। पाकिस्तान वुमेन टीम आज से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 वनडे और 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले जाएंगे। वनडे मैचेस ICC वुमेन्स चैंपियनशिप का हिस्सा हैं। सीरीज का आगाज 18 अप्रैल से नेशनल बैंक स्टेडियम में होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं उरूज फातिमा। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि शाम में कौंसल खाने पर हमले के जवाब में ईरान ने इसराइल पर बड़ा फ़िज़ाई हमला किया है। अल जज़ीरा के मुताबिक ईरान ने इसराइल की जानिब 200 से ज़ायद ड्रोन्स और मिसाइल फायर किए गए, जिनमें मखसूस मकामात को निशाना बनाया गया। फ्रांसीसी खबर एजेंसी के मुताबिक तल अबीब और मकबूजा बैतुल मक़दस में मुतअद्दिद धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं, जबकि मकबूजा मगरबी किनारे के इलाके अरिहा में फ़ज़ाई हमले के पेश नज़र सायरन बजा दिए गए। इसराइली हुक्काम ने तस्लीम किया है कि कुछ मिसाइल उनके मिलिट्री बेस पर भी गिरे, जिससे मामूली नुकसान हुआ है। ताहम ईरान ने दावा किया है कि उसके निस्फ दर्जन से ज़ायद मिसाइलों ने अपने अहदाफ को सही से निशाना बनाया, जबकि 1 अप्रैल को जिस बेस से दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने को हमले का निशाना बनाया गया था, उसे तबाह कर दिया गया है। उधर अमरीका ने दावा किया है कि इलाके में उसकी फोर्सेज ने ईरान की जानिब से दागे गए मुतअद्दिद ड्रोन्स और मिसाइल फ़ज़ा में ही तबाह कर दिए हैं। ताहम इसराइली फ़ौज के तर्जुमान का कहना है कि उसके बावजूद बड़ी तादाद में मिसाइल हमारी हुदूद में गिरे हैं और ये सिलसिला मुसलसल जारी है। ईरान ने अमरीका को मुतनब्बे किया है कि वो इस तनाज़े से खुद को दूर रखे। तेहरान में ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा है कि उसने ये कार्रवाई सहूनी दहशतगर्दी के जवाब में की है। एक टेलीग्राम पैगाम में तर्जुमान ने कहा कि UN चार्टर के आर्टिकल 5 के तहत ईरान अपने दिफा का हक रखता है। खित्ते में बदलती सूरत हाल पर गौर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने हंगामी इजलास तलब कर लिया है। शाम में ईरानी कौंसल खाने पर 1 अप्रैल के इसराइली फ़ज़ाई हमले के बाद मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में मज़ीद इजाफा हो रहा है। ईरान ने आबनाए हम्स में एक इसराइली जहाज़ को कब्जे में ले लिया। ईरानी बहरिया ने हेलीकॉप्टर के जरिए ऑपरेशन करते हुए MCS एरीस नामी एक कंटेनर जहाज़ को कब्जे में ले लिया और उसका रुख ईरान की समंदरी हुदूद की जानिब मोड़ दिया गया।
अमरीकी सदर जो बाइडन ने ईरान के हमलों के खिलाफ इसराइल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। इसराइल पर ईरान के गैर मामूली हमले के बाद अमरीकी सदर जो बाइडन निजी मसरूफियात तर्क करके व्हाइट हाउस पहुंचे। उन्होंने अमरीकी वज़ीर दिफा लॉर्ड ऑस्टिन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन समेत आला हुकाम के साथ हंगामी मुलाकात की, जिसके बाद समाजी वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में सदर बाइडन ने कहा कि ईरान और इसके प्रॉक्सी से लाहक खतरात के खिलाफ इसराइल की सलामती के लिए हमारा अज़्म पुख्ता है। इससे कबल अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा कि ईरान की जानिब से किसी भी किस्म की कार्रवाई की सूरत में इसराइल का दिफा किया जाएगा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से टेलीफोनिक गुफ्तगू में बताया कि अमरीका ईरान के खिलाफ इसराइल की जवाबी कार्रवाई की मुखालफत करेगा। अमरीका ने मशरिक़ वुस्ता में मज़ीद कुमक भेजने का ऐलान भी किया है। अस्करी हुकाम के मुताबिक इलाकाई डिटेरेंस मजबूत बनाने और अमरीकी अफवाज का तहफ़्फ़ुज़ बढ़ाने के लिए खत्ते में इजाफी वसाइल भेजे जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने इसराइल पर ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों पर तशवीश जाहिर करते हुए दोनों मुल्कों से तहम्मुल का मुजाहरा करने की दरख्वास्त की है। अपने एक बयान में अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने कहा कि ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी खित्ते के लिए तबाहकुन होगी। उन्होंने कहा दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी में इजाफे से मशरिक़ वस्ता हकीकी खतरे की लपेट में आ सकता है। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि ईरान और इसराइल ऐसी कार्रवाई से गुरेज करें जो खित्ते में बड़े फौजी तसादुम का बाइस बन जाए। उधर ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती कौंसिल के सदर के नाम खत में कहा है कि इसराइल पर हमला कानूनी और मुनसिफाना है। इसराइली जारहियत के खिलाफ अपने दिफा में हमला किया। एक जिम्मेदार रुकन की हैसियत से ईरान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी क़वानीन के उसूलों पर कारबंद है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन के मुताबिक तेहरान खित्ते में कशीदगी या तनाज़ात का ख़्वाहान नहीं। पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि वो खित्ते की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है। दफ्तर ख़ारजा की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान कई माह से खित्ते में महाज़राई को रोकने और गज़ा में जंगबंदी के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों की ज़रूरत पर जोर देता रहा है। बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान ने 2 अप्रैल को शाम में ईरानी कौंसल खाने पर हमले के मुज़मरात से आगाह करते हुए खबरदार किया था कि यह हमला पहले से गैर मुस्तहकम खित्ते में शदीद कशीदगी का बायस बन सकता है। आज की पेशरफ्त से सफारतकारी की नाकामी ज़ाहिर होती है। मौजूदा सूरत हाल से वाज़ेह होता है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल बैनुल-अक़वामी अमन सलामती को बरकरार रखने के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने से कासर है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान तमाम फ्रीकैन से इंतहाई ज़ब्त व तहम्मुल का मुजाहरा करने और कशीदगी में कमी पर जोर देता है। उधर बरतानिया, चीन, सऊदी अरब, मिस्र, फ्रांस, जापान, जर्मनी, कनाडा, अर्जेंटाइन और यूरोपीय यूनियन ने इसराइल पर ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए मुतालिका फ्रीकैन पर ज़ब्त व तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर दिया है। इन ममालिक ने खबरदार किया है कि इस हमले से मशरिक़ वस्ता का खित्ता मज़ीद अदम इस्तेहकाम का शिकार हो सकता है। उन्होंने आलमी बरादरी, खास तौर पर असर और रसूख रखने वाले ममालिक पर जोर दिया कि वो खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार अदा करें। नाज़रीन, गजा पर इसराइली बर्बरियत का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। सेहूनी फौज ने नुसीरात महाजिर कैंप और दीगर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। इसराइली फ़ज़ाइया ने गजा में 60 से ज़ायद मकामात पर हमले किए। इस दहशतगर्दी में 24 घंटों के दौरान 89 फ़लस्तीनी शहीद और 120 ज़ख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली जारहियत में शहदा की मजमूई तादाद 33,686 हो गई है, जबकि 76,309 ज़ख्मी हैं। बैनुल-अक़वामी तंजीम डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने फौरी और पायदार जंगबंदी की अपील करते हुए कहा है कि सलामती कौंसिल की करारदाद को महज कागज़ का एक टुकड़ा नहीं समझना चाहिए। तंजीम के सेक्रेटरी जनरल क्रिस्टोफर लाकर का कहना है कि मुसलसल बमबारी की वजह से गजा में सेहत का निज़ाम तकरीबन ख़त्म हो चुका है। रफ़ा में ज़मीनी कार्रवाई मुकम्मल तबाही हो गई। रूस और यूक्रेन की अफवाज के दरमियान लड़ाई जारी है। रूसी फौज ने यूक्रेन की अस्करी और तावानाई तनसीबात पर ड्रोन हमले किए हैं। मॉस्को में वजारत दिफा से जारी बयान में कहा गया है कि दुश्मन की तनसीबात को ठीक निशाना बनाते हुए शदीद नुकसान पहुंचाया गया। यूक्रेनी फौज के लॉजिस्टिक सेंटर्स पर हमला किया गया। रूसी हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 21 यूक्रेनी फौजियों ने हथियार डाल दिए। चीन ने यूक्रेन बहरान के खात्मे के लिए सफारती कोशिशें तेज करने पर जोर दिया है। सलामती कौंसिल इजलास में इजहार ख्याल करते हुए चीनी मंदूब ने कहा कि हथियारों की फराहमी जारी रखने से तनाज़े को मजीद हवा मिलेगी। उन्होंने कहा कि जंग के बजाय मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि सीरत म्यूजियम का क़याम एक अजीम मंसूबा है जो आलमी सतह पर गलत फहमियों के खात्मे का जरिया बनेगा। सीरत म्यूजियम इस्लामोफोबिया के खात्मे का जरिया भी बनेगा। उन्होंने कहा कि फैसल मस्जिद से सीरत म्यूजियम तक सऊदी अरब की मोहब्बतों के निशानात वाज़ेह हैं। ज़िशान अली भट्टी रिपोर्ट कर रहे हैं।
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आगाही और तालीमात के फरोग के लिए इस्लामाबाद में सीरत म्यूजियम का संगे बुनियाद रख दिया। इस मौका पर तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सऊदी क़यादत की मोहब्बत हमारे लिए कीमती सरमाया है। इस्लाम के लिए खिदमत पर राब्ते आलम इस्लामी का किरदार अहम रहा है। सऊदी अरब के शाही खानदान और सऊदी अरब के भाइयों बहनों की मोहब्बत को अहले पाकिस्तान कभी नहीं भुला सकते। फैसल मस्जिद से सीरत म्यूजियम तक आपकी मोहब्बतों के निशानात पाकिस्तान भर में देखे जा सकते हैं। अहले पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की क़यादत और आवाम की ख़ुसूसी तवज्जो और बरादराना जज्बात हमारे लिए बहुत कीमती सरमाया है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि सीरत म्यूजियम इस्लामोफोबिया के खात्मे का जरिया बनेगा। इससे बिला तखसीस रंग और नस्ल और मजहब तमाम बनिए नू इंसान मुस्तफीद हो सकेंगे। सीरत म्यूजियम दो मुख्तलिफ ज़ावियों से नहायत अहम खिदमत अंजाम दे सकता है। अव्वल यह कि इससे इस्तिफादा करने वाले हमारे हम वतन और दुनिया भर के मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत व किरदार और आपके रवैयों और रहन सहन के आदाब से वाकिफ हो सकेंगे। सीरत म्यूजियम का क़याम एक अजीम मंसूबा है जो आलमी सतह पर गलत फहमियों के खात्मे का जरिया बनेगा और मनफी प्रोपेगेंडे का मस्बत तरीके से जवाब मुहैया करेगा। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर चौधरी सालक हुसैन का तकरीब से खिताब में कहना था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात दुनिया के लिए मशले राह हैं। सीरत म्यूजियम इस्लामी तालीमात के फरोग में अहम किरदार अदा करेगा। तकरीब से राब्ते आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम आल ईसा ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तानी कौम इस्लामी इक़दार से मोहब्बत रखती है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन मजहब की बुनियाद पर गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। इस मौका पर पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने कहा कि राब्ते आलम इस्लामी दुनिया भर में इस्लाम की तालीमात को उजागर कर रहा है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तकरीब में कमसिन हुफ़ाज खूबसूरत और मुनफरिद लहजों में तिलावत कुरान पाक करने वालों में इनामात भी तकसीम किए। ज़िशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म से राब्ता आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने दुनिया भर में इस्लाम का हकीकी तशख़्ख़ुस उजागर करने के लिए डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा की खिदमत को सराहते हुए कहा कि मुस्लिम उम्मा के दरमियान इत्तेहाद को फ़रोग़ देने और अमन, रवादारी और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का पैगाम आम करने में राब्ता आलम इस्लामी का अहम किरदार है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने मजबूत बरादराना ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है जो मुश्तरका अक़ीदे, अक़दार और सक़ाफ़त पर मबनी है। उन्होंने राब्ता आलम इस्लामी के साथ पाकिस्तान की हिमायत और शराकत दारी जारी रखने के अज़्म का इयादा किया। डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के अज़्म और कोशिशों को सराहा। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए सिख यात्रियों की पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी है। यात्री पाकिस्तान में 10 दिन तक क़याम करेंगे। तफसील मोहम्मद उवैस खटाना से। बैसाखी मेले की तकरीबात में शिरकत के लिए 3000 से ज़ायद सिख यात्री वाघा के रास्ते पाकिस्तान पहुंचे। सूबाई वुज़रा, महकमा औकाफ के हुक्काम और पाकिस्तान प्रबंधक कमेटी के अरकान ने यात्रियों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौका पर सूबाई वजीर बराए अक़लीती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि पाकिस्तान में सिखों के मुकद्दस मकामात को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। पाकिस्तान की आवाम सिख नूं अपने मत्थे दा झूमर, सिर दा ताज बना के रख दिए और सिख नूं हमेशा मान सम्मान देंदी है। अगले 10 दिन तुहाडे नाल रवांगे और तुहाडा पूरा लुक आफ्टर करांगे, तुहाडी सेवा संभाल करांगे। पाकिस्तान दे विच तुहानूं पूरा एहसास होगा कि तुहाडा दूसरा कार है। भारतीय वफ्द के सरबराह कुलवंत सिंह ने यात्रियों के लिए बेहतरीन इंतजाम करने पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने भी साडा इत्थे आते सानू सत्कार दिता है। सब दा असीं अपने वालों बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं और जथे वालों भी धन्नवाद करते हैं। अपने गुरु नानक देव जी की जन्म भूमि विच आए हैं, ननकाना साहब, पंजा साहब होर गुरुधामां दे दर्शनां लई आए हैं और सानू बहुत खुशी हो रही है कि असीं गुरुआं दी धरती ते आए हैं। एक दिली तमन्ना शायर दी सरहदों पार भी जा आई है। ये धरती है मुहम्मद दी, ये धरती है गुरु नानक दी, इनू जाके सीस नवा आई है। बहुत ज़्यादा इंतजाम वधिया है, बहुत लोग इत्थों दी मुहब्बत करते हैं।
ਇਹ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਵਾਂ ਦੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ। बहुत अच्छा वेलकम, एक्सपेक्टेशन तो ज़्यादा, रियली मज़ा आ गया। सिख यात्री हसन अब्दाल में गुरुद्वारा पंजा साहब जाएंगे, जहां बैसाखी मेले की मरकजी तकरीब का इनकाद होगा। यात्री पाकिस्तान में 10 रोज क़याम के दौरान ननकाना साहब, करतारपुर साहब और लाहौर में मौजूद मुकद्दस मकामात का दौरा भी करेंगे। अवैस खटाना, PTV न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि हमें फ़ख्र है कि पाकिस्तान मुख्तलिफ़ अकायद और सकाफ़तों का एक खूबसूरत इम्तज़ाज है। बैसाखी के रंग इस खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करते हैं। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि बैसाखी के रंगारंग त्यौहार के मौके पर दुनिया भर और पाकिस्तान में मुकीम सिख बरादरी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि बैसाखी प्यार, मोहब्बत और खुशियाँ बांटने का त्यौहार है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में मौजूद मजहबी मकामात का दौरा करने वाले सिख यात्रियों को तमाम तर सहूलियात फराहम की जाएंगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि बैसाखी के मौके पर मैं आप सबको प्यार, मोहब्बत और अमन का पैगाम देना चाहता हूँ। आए मिलकर एक पुरअमन दुनिया की तश्कील में अपना किरदार अदा करें। उधर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सिख बरादरी को बैसाखी के मौके पर दिली मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि बैसाखी का त्यौहार अमन और सलामती के साथ साथ खुशियों और मोहब्बत का पैगाम भी देता है। अपने पैगाम में सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान को अपने सकाफती वर्षे में तनव्वुर पर फ़ख्र है। पाकिस्तान सिख बरादरी की सहूलियत के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान अक़लियतों और उनके हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान मुल्क की तरक्की में अक़लियतों के किरदार को कदर की निगाह से देखता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने बैसाखी के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि बैसाखी पंजाब की मुनफरिद सकाफत की पहचान है। ढोल की थाप पर दरांती से गंदम की सुनहरी फसल काटकर बैसाखी का आगाज़ होता है तो खुशियां हर सू फैल जाती हैं। उन्होंने बैसाखी के मौके पर बहन भाइयों को मुबारकबाद पेश की और पंजाब में बैसाखी मनाने के लिए आने वाले सिख बहन भाइयों को खुश आमदेद कहा और कहा कि वो पहले पाकिस्तानी फिर ठेठ पंजाबी हैं। पंजाब उनके दिल में बसता है। और मोदी सरकार की कुछ बात कर लेते हैं, जिसने भारतीय सरजमीन ईसाइयों पर तंग कर दी है। जहां ईसाई मिशनरी स्कूल्स हिंदुत्व नज़रिए की भीड़ चढ़ने लगे। भारत में कायम चर्च 10 साल से हुकूमती दबाव का शिकार है। भारतीय हुकूमत की गैर मुनसिफाना पॉलिसियों पर कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ने 13 सफ़ात पर मबनी एक जाम खत लिखा, जिसमें भारतीय ईसाइयों को दरपेश चैलेंजेस का पस मंज़र बयान किया गया। बीजेपी हुकूमत ने कैथोलिक बिशप्स पर झूठा इल्ज़ाम लगाया कि वो हिंदू तलबा को ज़बरदस्ती ईसाइयत की तरफ माइल करते हैं, जबकि बिशप्स ने इन इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद की। ईसाइयों की मजहबी खुद मुख्तारी को चैलेंज करते हुए भारतीय हुकूमत ने कैथोलिक स्कूल्स में आइन हिंद की तमहीद का इज्तमाई मुताला लाज़मी करार दिया। गुज़श्ता बरस ईसाइयों के खिलाफ तशद्दुद के 600 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हुए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर हिंदू इंतहा पसंदों ने मिशनरी स्कूल इंतज़ामिया को वार्निंग दी कि वो स्कूलों के दरवाज़ों पर सरसूदी की मूर्तियाँ लगाएं। भारत में हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से मुसलसल दखल अंदाजी और धमकियों से तंग मसीह रहनुमा इंतहाई मायूसी का शिकार हैं। मोदी सरकार के इंतखाबात से कबल मीडिया के जरिए धांधली की मुहिम के असल हकायक सामने आ गए। मोदी सरकार ने G20 इजलास की मेज़बानी के बाद से ही भारतीय अवाम में मीडिया के जरिए झूठा बयानिया फैलाना शुरू कर दिया था। मोदी सरकार के खरीदे गए मीडिया हाउसेस के जरिए आवाम को यह पैगाम दिया जा रहा है कि मोदी भारत के लिए ज़रूरी है। कुछ मगरबी ममालिक इंसानी हुकूक के दावेदार बनते हैं, लेकिन जब भारत की बात आती है तो सब खामोश हो जाते हैं। गुज़श्ता 10 सालों के दौरान भारत में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। मोदी सरकार की बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी का असल चेहरा कनाडा की हुकूमत की जानिब से पूरी दुनिया में दिखाया गया। कनाडा की जानिब से इल्ज़ाम के बाद अमेरिका ने भी भारत पर बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया। मोदी सरकार अपनी मफाद परस्ती का रंग बैनुल-अक़वामी ममालिक के साथ ताल्लुकात में भी दिखा चुका है। उधर मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज़ भारतीय फ़ौज ने भारतीय पार्लिमानी इंतखाबात से कबल ही हिफाजती इंतजामात की आड़ में मुहासिर और तलाशी की कार्रवाइयों, घरों पर छापों और गिरफ्तारियों का सिलसिला तेज कर दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज, पैरामिलिट्री और पुलिस एहलकारों ने श्रीनगर, बारामूला, कुपवाड़ा, बुडगाम, पुलवामा और दीगर अजला के मुख्तलिफ इलाकों में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ तेज कर दी हैं। कई इलाकों के रिहायशियों ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि फोर्सेज एहलकार घरों पर छापों के दौरान खवातीन और बच्चों समेत मकीनों को सख्त हिरासा करते हैं। भारतीय फोर्सेज एहलकारों ने गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान सैकड़ों नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने बिला जवाब छापों और गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत हक़ खुद इरादियत के मुतालबे की पादाश में कश्मीरियों को बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है। उन्होंने कश्मीर पर भारतीय कब्जे को जदीद दौर की इस्तेमारियत करार देते हुए कहा कि आज़ादी पसंद कश्मीरी भारतीय हथकंडों से हरगिज़ मरूब नहीं होंगे और वो शोहदा के अजीम मिशन की तकमील तक अपनी जद्दोजहद हर कीमत पर जारी रखेंगे।
जम्मू खत्ते के मुख्तलिफ इलाकों में पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं जिनके जरिए लोगों पर जोर दिया गया है कि वो बीजेपी और RSS के शैतानी एजेंडे को नाकाम बनाने के लिए अपनी सफ़ों में इत्तेहाद और इत्तेफाक को मजीद फरोग़ दें। उधर इंसानी हुकूक की तंजीम फ्रंट लाइन डिफेंडर्स ने मोदी हुकूमत की तरफ से मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक के मुहाफ़िज़ों और सहाफ़ियों के दरपेश जुल्म और जबर पर तशवीश का इजहार किया है। तंजीम ने अपनी वेबसाइट पर एक पोस्ट में कश्मीरी सहाफ़ी सज्जाद गुल की मुसलसल नज़रबंदी का हवाला देते हुए कहा है कि मकबूजा इलाके की हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी नवंबर 2023 में कलअदम करार दे दी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें रिहा नहीं किया गया। बलूचिस्तान के ज़िला चाकी में वाक़ रक्को डक्का पर गोल्ड मंसूबे में सऊदी अरब की जानिब से $1 अरब तक की सरमायाकारी जल्द मुतवक्के है और इस हवाले से खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल रुकावटों को दूर करने के लिए कोशा है। सऊदी सरमायाकारी की हमवार तकमील के लिए वज़ीर आज़म वज़ारत ख़जाना की कमेटी बनाएंगे जिसमें पाकिस्तान की जानिब से तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल होंगे। ये SIFC की मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी के लिए कारोबार दोस्त माहौल फराहम करने की कामयाब कोशिशों का सबूत है। ये सरमायाकारी मुल्क में मज़ीद गैर मुल्की सरमायाकारी की राह हमवार करेगी और SIFC के मैंडेट को हासिल करने में मदद मिलेगी। इस सरमायाकारी के बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब मादनियात के शोबे में मज़ीद सरमायाकारी करने के मुआहदों पर दस्तखत करेंगे। और पाकिस्तान ने $1 अरब के यूरो बॉन्ड की बरवक्त अदायगी कर दी है। स्टेट बैंक के मुताबिक $1 अरब के बैनुल-अक़वामी पाकिस्तानी बॉन्ड की अदायगी कर दी गई है। पाकिस्तान की जानिब से 12 अप्रैल 2024 को मयाद पूरी करने वाले $1 अरब बॉन्ड की अदायगी की गई। बॉन्ड होल्डर्स को आगे की तकसीम के लिए अदायगी एजेंट बैंक को की गई जिसमें असल और मुनाफा दोनों शामिल हैं। नाज़रीन आगे बढ़ें और आपको बताएं कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के यौम शहादत के सिलसिले में पीपल्स पार्टी गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो लाड़काना में आज सिलसिला आम का इनेकाद कर रही है। जलसा आम से पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और मरकजी क़यादत खिताब करेगी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं शहराज डाहरी से जो इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। शहराज, बताइएगा तैयारियां कहां तक पहुंची हैं और कौन कौन शिरकत कर रहा है इस जलसे में? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो लाड़काना में, जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 45वीं बरसी के मौके पर जलसा आम किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी की तरफ से 4 अप्रैल को वैसे ये जलसा किया जाता है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक की वजह से ये जलसा एक्सटेंड किया गया था और आज इस बरसी के मौके पर जलसा आम लाड़काना में हो रहा है। गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो में मज़ार पर कारकुनान की बड़ी तादाद जो है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए पहुँच रही है। मुल्क भर से पीपल्स पार्टी के कारकुनान और जियाले जो है गुज़िश्ता शब से यहाँ पे पहुँचना शुरू हो गए थे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के अलावा जो मरकज़ी कायदीन हैं वो भी आज जलसे से जो शाम यहाँ पे होगा उसमें खिताब करेंगे और कारकुनान का लहू गरमाएंगे, जबकि पीपल्स पार्टी के जो दीगर जियाले और कारकुनान के मुख्तलिफ कैंप्स लगाए गए हैं, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 8000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार जो हैं वो तैनात किए गए हैं। 12 मकामात पर वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं जिसमें स्कैनिंग करने के बाद कारकुनान को जो है जलसागाह में अंदर दाखिल किया जा रहा है। ना सिर्फ सिंध और लाड़काना बल्कि पूरे पाकिस्तान से कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे पहुँच रही है। जी बहुत शुक्रिया शहराज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के यौम शहादत के सिलसिले में आज गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो में होने वाला जलसा-ए-आम एक बार फिर गरीब व मेहनत कश अवाम में भुट्टोइज़्म की वसी मकबूलियत का अक्कास है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि ये इज्तिमा महज एक जलसा नहीं बल्कि अक़ायद अवाम के उन उसूलों के मुतालिक अयादा करना है जो तरक्की पसंद और मुत्तहिद पाकिस्तान के लिए उनके विजन से वाबस्तगी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इस दिन को नए अज़्म के साथ भुट्टो के नज़रिए और उसूलों से अपनी वाबस्तगी का अयादा करने के लिए बरोकार लाएं। शहीद भुट्टो के इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला सच्चाई और इंसाफ की तलाश की निशानदही करता है। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। 3 से 13 अप्रैल तक 8581 शहरियों पर मुश्तमिल मजीद 310 अफगान खानदान अपने मुल्क लौट गए हैं। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 287 गाड़ियों में अफगान खानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई। 13 अप्रैल 2024 तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 5,35,000 से ज़ायद हो गई है। बलूचिस्तान के ज़िला नूशकी में दहशतगर्दी के वाक़े में जाम हक 9 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आला सरफराज बुगटी और आला हुक्काम ने नमाज जनाजा में शिरकत की। बाद मैयतों को उनके आबाई इलाकों को रवाना कर दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि दहशतगर्द सूबे के अमन और तरक्की को सबूताश करना चाहते हैं। इन अनासर को मुंतक़ी अंजाम तक पहुँचाएंगे।
हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की कैपेसिटी है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की कैपेसिटी है, हम उनके पीछे जाएंगे और हम अनर्थ करेंगे उन तमाम लोगों को जिन्होंने ये घिनौनी हरकतें जो हैं वो अपनी जारी रखी हुई हैं। ये नहीं हो सकता है कि आप रेट ऑफ द स्टेट को चैलेंज किए रखें और आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। हम अपना पूरा सिक्योरिटी प्लान रिविजिट करेंगे। हमें दुख इस बात का होता है मुझे कि अगर आप इस इंसर्जेंसी को लड़ रहे हैं, जो फोर्स उसको सबसे ज्यादा काउंटर कर रही थी वो हमारी पैरामिलिट्री फोर्स फ्रंटियर कोर, उनकी सबसे ज्यादा इस पर शहादतें हैं, सबसे ज्यादा इनकी कुर्बानियां हैं, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करके उनको मिलाइन किया जाता रहा है। और इस वजह से मैं समझता हूं कि जो पॉलिटिकल ऑनरशिप एक सिपाही को सड़क पे नहीं मिले, उसको उसके मोर्चे में ना मिले, वो ड्यूल माइंडसेट पे पूरी नेशन है। जो मजहब के नाम पर वायलेंस है तो हम सारे मिलके उसको कह रहे हैं दहशतगर्दी है। ये जो सो कॉल्ड कॉमपरस्ती के नाम पर दहशतगर्दी का बाजार गर्म किया हुआ है, इसके बारे में हम नेशन एज अ नेशन ड्यूल माइंडसेट में हमें निकलना पड़ेगा। हम अपने फोर्सेस को इक्विप करेंगे। ये जो दहशतगर्दी का बाजार है इसके खिलाफ लड़ेंगे। जब तक एक दहशतगर्द भी बाकी होगा वी विल फाइट। दहशतगर्दों का कोई मजहब होता है ना कोई नस्ल। एक गिरोह बलोचों को बदनाम और इलाके की खुशहाली को बर्बाद कर रहा है। बलोचिस्तान के अवाम ने सानह नोशकी की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि नोशकी में निहत्ते मुसाफिरों पर वहशियाना हमला इंतहाई मजमूम कार्रवाई है। हमारे दिल शोहदा के लवाहिकीन के साथ धड़कते हैं और उनके गम में शरीक हैं। बलोचिस्तान मेहमान नवाज सूबा है और यहाँ हर कल्चर के हर किस्म के लोग आने चाहिए और आ सकते हैं। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत अफसोसनाक और काबिल मुज़म्मत है। मैं एज अ बलोच शर्मिंदा हूँ इस अफसोसनाक वाक़ये पर। हम अपने सूबे में किसी को इस तरह तशद्दुद करने की इजाज़त नहीं देते। चंद अनासर ऐसे हैं जो स्पॉन्सर्ड भी हो सकते हैं और उसके अलावा उनका कोई इसके पीछे कोई ऐसे मोटिव्स होंगे कि ताकि उससे बलूचिस्तान या पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो। लेकिन इंशाल्लाह हम उनके ख़िलाफ़ जो है ना हम खड़े हैं और इंशाल्लाह आगे भी खड़े रहेंगे। एक दहशतगर्द ग्रुप पूरी नस्ल को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। हमारे बलूचिस्तान की खुशहाली और उसके अमन को ख़राब ना किया जाए और हम इसकी भरपूर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो हमारे कौम और मुल्क के वफादार है और हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं। हम अवाम फ़ौज के साथ खड़े हैं, शाना बशाना खड़े हैं। उनकी जो दहशतगर्दी की जो रोकथाम के लिए हालिया जो ऑपरेशंस कर रहे हैं इनको भरपूर ताउन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं कि इस तरह की दहशतगर्दी की वाक़यात को रोका जाए। दहशतगर्दी की इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करती हूँ। शोहदा नोशकी के लवाहिकीन के साथ इज़हार हमदर्दी करते हैं। और ईद उल फितर अपने प्यारों के दरमियान गुजारने के बाद परदेसियों की वापसी का सिलसिला जारी है। हमारे नुमाइंदे मौज़मुद्दीन इस वक्त लाहौर में बस अड्डे पर मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी मौज़म, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद उल फितर अपने प्यारों के साथ मनाने के बाद लाहौर शहर से दूसरे शहरों की तरफ जाने वाले परदेसियों की वापसी का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका हुआ है। गुज़श्ता रोज से भी परदेसियों की वापसी जो है वो शुरू हो गई थी। आज इतवार का दिन है, आखिरी छुट्टी है। कल से तमाम तालीमी इदारे, दफातर और कारोबारी मराकज़ जो है वो खुल जाएंगे। इसलिए आज सुबह से ही बदामी बाग या दूसरे जो लाहौर शहर के बस अड्डे, रेलवे स्टेशन पे शहरियों की जो आमद का सिलसिला है वो बढ़ गया है, रश बढ़ चुका है। अगर आप मेरे पीछे देख सके तो बहुत ज्यादा बसें यहाँ पे मौजूद हैं और बड़ी तादाद में लोग जो है वो वापसी कर रहे हैं। जिनसे हमारी बात है कहना है कि जब गए थे तो बड़ी खुशी थी कि अपने घर वालों के साथ ईद मनाएंगे, लेकिन वापसी में उनके दिल उदास है क्योंकि अब कल से दोबारा से जो नॉर्मल रूटीन है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन उनको कहना है कि उनके दिल में इस बात का इत्मीनान जरूर है कि अपने घर वालों के साथ ईद मनाई है। बच्चे बहुत ज्यादा खुश थे जिन्होंने अपने घर वालों से ईद मनाई। लोगों का यही कहना है कि ये एक खुशी होती है कि अपने घर वालों से ईद मनाई जाए। अब जो नॉर्मल जिंदगी है वो दोबारा शुरू हो जाएगी। उन्हें कहना है कि बड़ा इंतजार होता है साल भर के ईदें आए ताकि अपने घर वालों के साथ जाके ईद मनाई जाए। तो बदामी बाग बस अड्डा, दूसरे न्याजी बस अड्डा, बस स्टैंड, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो लाहौर शहर से दूसरे शहरों में ईद मनाने के लिए परदेसी गैरों की वापसी का सिलसिला जारी है और ये सिलसिला जो है वो आज रात तक जारी रहेगा। आज आखिरी दिन है। कल से तमाम तालीमी इदारे, दफातर और कारोबारी मराकज़ खुल जाएंगे। तो यकीनन जो शख्स वापस किया यही कोशिश है कि जल्द से वापस आया जाए ताकि कुछ आराम भी किया जाए और फिर कल से दोबारा अपनी जो नॉर्मल जिंदगी को शुरू किया जाए। जी, ईद की छुट्टियों के खत्म होते ही मुलाजमत पेशा अफराद और दूसरे रोजगार के मुतलाशी अफराद ने अपने आबाई इलाकों से वापस बड़े शहरों का
सफर शुरू कर दिया है। मोटरवे पुलिस ने इस रश को मद्देनजर रखते हुए ओवरलोडिंग और ओवर चार्जिंग के खिलाफ खुसूसी मुहिम शुरू कर रखी है। ओवरलोडिंग और ओवर चार्जिंग की सूरत में भारी जुर्मानों के साथ साथ मुसाफिरों को जायद लिया गया किराया भी वापस कराया जा रहा है। आईजी मोटरवे पुलिस सलमान चौधरी का कहना है कि मोटरवे पुलिस ने ईद के दिनों में रात के औकात में मौसर पेट्रोलिंग के लिए इजाफी नफरी भी तैनात की। मोटरवे पुलिस दिन रात मुसाफिरों की जान और माल की हिफाजत के लिए मसरूफ़ अमल है। रुख करते हैं रहीम यार खान का, जहां गंदम की फसल पक कर तैयार हो चुकी है और गंदम की खरीदारी के लिए महकमा खुराक रहीम यार खान की जानिब से जिला में 21 खरीदारी सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं। काश्तकार बारदाना के हुसूल के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। तफसील बता रही है इशफाक अहमद। जिला रहीम खान में इस साल 2024 के लिए 60,000 मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी का हद मुकर्रर किया गया है, जिसके लिए जिला भर में 21 खरीदारी सेंटर बनाए गए हैं। तहसील रहीम खान में 6, तहसील सादकाबाद में 8, तहसील लियाकतपुर में 7, जबकि खानपुर में 5 को खरीदारी करेगा। तमाम तर सेंटरों पर इंतजाम मुकम्मल कर दिए गए हैं और काश्तकार बारदाना के हसूल के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें दे रहे हैं। प्ले स्टोर से जाएगा, अपना बारदाना ऐप इंस्टॉल करेगा और घर से ही अपना बारदाने के लिए अप्लाई कर देगा। जो इन्होंने एक चीज़ जो है मुझे अच्छी लगी है कि उन्होंने 100 किलोग्राम के पीछे जो 30 रुपये डिलीवरी चार्जेस अदा कर रहे हैं ज़मींदार को, ये बहुत अच्छी चीज़ है। गवर्नमेंट की जानब से गंदम का रेट 3,900 रुपये फी मन के हिसाब से मुकर्रर कर दिया गया है। रोजाना सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक गंदम खरीदारी मराकज़ खुले रहेंगे। गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है बारदाना देने की, ये बहुत अच्छी पॉलिसी है। इंशाल्लाह हमें बारदाना टाइम से मिलेगा। फसलें बहुत अच्छी हैं और एवरेज भी अच्छी है और ये ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट ले रही है एक ज़मींदार से 15 मन एकड़ के हिसाब से, तो कम से कम 50 से 60 मन एवरेज बनेगी फी एकड़। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर की जानब से गंदम खरीदारी के हवाले से SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। फ्लोर मिल्स हुकूमती अहकामात के मुताबिक गंदम खरीदारी करेंगी। गंदम खरीदारी का ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक गवर्नमेंट की जानब से तयशुदा टारगेट हासिल नहीं किया जाता। इशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान। ईद गुजरने के बाद भी इस्लामाबाद के तफरीही मकामात पर शहरियों का हुजूम रहा। इस्लामाबाद और दूसरे इलाकों से आए शहरियों ने कुदरती हुस्न से मालामाल मारगला की पहाड़ियों का इंतखाब किया। नमरा सुहेल की रिपोर्ट। ईद तो गुजर गई, लेकिन छुट्टियां अभी खत्म नहीं हुई। घर के बड़े तो छुट्टी पर आराम करना चाहते हैं, लेकिन खवातीन और बच्चों की ख्वाहिशात कुछ और ही थीं। ईद की छुट्टियों और वीकेंड को यादगार बनाने के लिए अवाम की बड़ी तादाद ने पिकनिक मनाने और मजेदार खानों के लिए मारगला की खूबसूरत पहाड़ियों का रुख किया। फर्स्ट टाइम आई थी तो सब कुछ अच्छा लगा है। व्यू यहाँ से व्यू है बहुत अच्छा, मौसम बहुत अच्छा है और यहाँ पे खाना बहुत अच्छा है। अपनों के साथ खुशियों को दुबाला करने के लिए शहरियों ने खूबसूरत मौसम और हसीन नज़ारों का लुत्फ लिया और मजे मजे के खाने खाए। व्यू इज परफेक्ट फॉर इस्लामाबाद और रावलपिंडी। द बेस्ट थिंग वी कैन गेट हियर इज गुड फूड विद गुड व्यू। गेस्ट को सर्व करके बहुत अच्छा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह, और दूर दूर से गेस्ट आते हैं इस व्यू को एंजॉय करने के लिए, फूड एंजॉय करने के लिए। बच्चे तो इतनी तफरीह के बाद वापस जाने के लिए तैयार ही ना थे, लेकिन जनाब अभी छुट्टी बाकी है तो घर बैठे क्या कर रहे हैं। आए और मारगला की पहाड़ियों के शहर में कुछ देर तो गिरफ्तार हों। मारगला के खूबसूरत नज़ारे और बेहतरीन मौसम के साथ मजेदार खाना, आउटिंग का मजा तो दोबाला हो गया। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी ने सयाहों के लिए ईद पर तख्त भाई आसार कदीमा के लिए सफारी ट्रेन दौरे का एहतमाम किया। रिपोर्ट कर रहे हैं अदनान शाह। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर तख्त भाई के आसार कदीमा की सैर व तफरीह के लिए खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी ने सफारी ट्रेन दौरे का एहतमाम किया, जिसका आगाज पेशावर सदर रेलवे स्टेशन से मेहमानों को रिवायती बैंड की धुनों से किया गया। ट्रेन में यतीम और बेसहारा बच्चों को खुसूसी तौर पर ईद की खुशियों में शरीक किया गया। सफारी ट्रेन पेशावर शहर रेलवे स्टेशन से होती हुई पब्बी, नौशहरा, मर्दान, रिसालपुर और तख्तभाई स्टेशन पहुंची। ट्रेन में 130 से ज्यादा बच्चे, खवातीन और मर्द शरीक हुए, जिन्हें कोस्टर्स पर तख्तभाई आसार कदीमा की मकाम की सैर कराई गई। ईद उल फितर पर सयाहों के लिए खुसूसी तख्तभाई ट्रेन सफारी का इनेकाद किया। बहुत अच्छी अरेंजमेंट है, आउटस्टैंडिंग, बहुत वार्म वेलकम किया इन्होंने। सबसे जो बेहतरीन बात है कि जिन तारीखी मकामात से हम गुजर रहे हैं, जिन तारीखी स्टेशन से हम गुजर रहे हैं, उसके बारे में तफसीली हमें ब्रीफिंग भी दी जा रही है। मौसम भी बहुत अच्छा है और हम लोग ने सारा आपका तखबे कर आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी देखा और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। स्पेशली हम इस ट्रेन के सफारी ट्रेन के लिए कराची से आए
اور یہ KP کے گورنمنٹ کا بہت اچھا انیشیٹو ہے اور اس طرح کی ٹرینیں مسلسل چلنی چاہیے۔ خیبر پختونخوا کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی کی جانب سے آثار قدیمہ کے مقامات کے فروغ کے لیے دوسرا سفاری ٹرین دورہ تھا، جس کا مقصد سیاحوں کو تاریخی مقامات کی سیر و تفریح سمیت مذہبی سیاحت کو فروغ دینا ہے۔ عدنان شاہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور۔ اور ملتان کے شہری بھی تفریحی مقامات کی سیر سے خوب لطف اندوز ہوئے۔ دلاور حسین کی رپورٹ۔ ملتان میں بارش کے بعد شہریوں کی بڑی تعداد اور فیملیز خوشگوار موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے پارکوں اور تفریح گاہوں میں موجود ہیں۔ مرد و خواتین، خاص طور پر بچے، عید کی چھٹیوں کے آخری روز خوب موج مستی کرتے نظر آئے۔ ہم نے انجوائے وغیرہ کیا ہے، کھانا وغیرہ کھایا پیا ہے، دوستوں نے پارٹی وغیرہ کیا ہے۔ جہاں پہ ہم نے انجوائے کیا اور ہم نے یہاں پہ بہت سے جھولے کھائے، یہاں پہ بہت مزہ آ رہا ہے، بہت انجوائے ہو رہا ہے، آج موسم بہت پیارا ہے۔ یہاں ہم سارے انجوائے کرنے آئے، گھومنے آئے اور ہم نے بہت سے یہاں جھولے وغیرہ کھائے ہیں۔ میں نے بہت زیادہ یہاں پر انجوائے کیا ہے، جھولے بھی بہت زیادہ لیے ہیں، ڈریگن والے بھی، اور میں نے کشتی والے بھی لیے ہیں، کپ والے بھی، اور بھی بہت سارے لیے ہیں۔ بچوں نے رنگ برنگے کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے اور ان کے معصوم چہروں کی خوشی دیدنی تھی۔ بچے جھولے لینے میں مصروف رہے اور کچھ اپنی باری کا انتظار کرتے رہے۔ بچوں نے جمع کی ہوئی عیدی سے آئس کریم اور مزے مزے کی چیزوں پر اپنا ہاتھ صاف کیا۔ ملتان میں بارش نے موسم کو چار چاند لگا دیے، جن سے شہریوں اور بچوں کی خوشیاں دوبالا ہو گئیں۔ دلاور حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ اور عیدی خرچ کرنے کے لیے بچے ایسے پارکوں میں گئے جہاں مختلف قسم کے جھولے موجود تھے۔ رپورٹ کر رہی ہے کراچی سے سدرا فاطمہ۔ عید کی چھٹیوں پر بچوں کا تفریحی مقامات کی طرف رخ، شرارتوں اور موج مستیوں سے خوشیاں دوبالا۔ دعوتیں تو خوب اڑائیں، اب عیدی بھی اڑانی ہے۔ بچے ہلا گلا اور موج مستی کرنے کے لیے تفریح گاہ پہنچ گئے۔ بچوں نے اپنی اپنی پسند کے جھولے جھولے، جبکہ کچھ بچوں نے تیر اندازی کے جوہر دکھائے۔ پارک میں آنے والے بچوں کا کہنا ہے کہ جھولوں اور پارکس میں آئے بغیر عید کا مزہ ادھورا ہی رہ جاتا ہے، اس لیے والدین سے پارک آنے کی ضد کرتے ہیں۔ شیر دیکھا، جھولے دیکھ کے بہت مزہ آ گیا۔ میں نے عید کے دن تینوں دن عیدی جمع کی ہے اور آج گھومنے آیا ہوں میں۔ میں نے ماما سے بولا تھا ماما یہاں پہ لے کے آئے۔ جب عید آتی ہے میں یہاں پہ آتا ہوں، مجھے بہت جھولا جھولتا ہوں، مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ میں کب سے اپنے امی ابو سے ضد کر رہا تھا، وہ مجھے جھولے جھولنے لائے۔ مزے مزے کے اسنیکس نے بچوں کی تفریح کا مزہ دوبالا کر دیا۔ کہیں آئس کریم کھائی جا رہی ہے تو کہیں کاٹن کینڈی کے مزے اڑائے جا رہے ہیں۔ بچوں کا ارادہ ہے کہ جب تک اپنی عیدی ختم نہ کر لیں تب تک تفریح گاہوں سے جانے کا نام نہیں لیں گے۔ خوشیوں بھرے اس تہوار میں جب تک بچوں کی تفریح شامل نہ ہو تب تک عید نامکمل ہے۔ سدرا فاطمہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ ناظرین، کراچی کے شہریوں نے سیر و تفریح کے لیے چڑیا گھر کا بھی رخ کیا۔ آشا فین کی رپورٹ۔ عید جہاں دوست احباب سے ملنے کا نام ہے، وہیں سیر و تفریح بھی اس تہوار کا لازمی حصہ ہے۔ کراچی کے شہریوں نے اپنی عید کو انجوائے کرنے کے لیے بڑی تعداد میں چڑیا گھر کا رخ کیا، اپنے من پسند جانوروں کو دیکھا اور اپنی عیدی مزے مزے کے کھانوں اور جھولوں پر خرچ کی۔ زو میں آگے بہت اچھا لگا، ادھر ہاتھی تھے بہت اچھے لگ رہے تھے۔ میں نے تو یہاں پہ ساری عیدی خرچ کر دیا۔ یہاں میں نے سب دیکھا، ہرن دیکھیے، ایلیفینٹ دیکھا، سب دیکھا۔ میں چڑیا گھر میں آیا ہوں اور یہاں بہت مزہ آ رہا ہے۔ یہاں ہاتھی، شیر، چیتا سب کچھ ہے۔ یہاں پہ ہم عید پہ آتے ہیں اور جانور کو ہی دیکھتے ہیں، اچھا لگتا ہے ہمیں دیکھنا۔ بہت اچھا لگ رہا ہے ادھر آ کے، بہت اچھے ادھر پکس ہیں اور بہت اچھے اینیملس ہیں ادھر۔ یہاں پر ابھی ہم نے ہاتھی کو کھانا کھلایا اور ہم نے ابھی جانور دیکھے۔ بچوں کے ساتھ بڑوں نے بھی عید کے اس تہوار کو یادگار بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ جانوروں کو دیکھ کر بچوں کے چہروں پر جو خوشی آتی ہے وہ ہماری عید خوشگوار بنا دیتی ہے۔ بچہ جو ہے میرا بہت ایکسائٹڈ تھا کہ وہ جو ہے نا شیر، ببر شیر اور ان چیزوں کو دیکھے گا۔ کافی اچھا لگ رہا ہے، کافی گہما گہمی ہے، موسم بھی اچھا ہے، انجوائے بھی کر رہے ہیں، بچے بھی خوش ہو گئے۔ بچے بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ بچوں کو ہم خوش ہوتے ہوئے دیکھتے تو ہم سب خوش ہو جاتے ہیں۔ چڑیا گھر میں موجود ہاتھی بھی بچوں کو دیکھ کر خوب اٹکھلیاں کرتا رہا، جبکہ سیر و تفریح کے لیے آنے والے شہریوں نے بھی عید کی تعطیلات کو خوب انجوائے کیا۔ نایاب پرندوں اور جانوروں کو دیکھنا کسے پسند نہیں ہوتا، یہی وجہ ہے کہ چڑیا گھر کے سیر نے بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کے لیے بھی عید کے مزے کو دوبالا کر دیا ہے۔ عائشہ آفرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ اور چھٹیوں، خاص طور پر ویکینڈ پر گھر سے باہر ناشتہ کرنا لاہوریوں کی روایت ہے۔ اسکا مقصود کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔
عید کے تینوں دن لاہور میں سب لوگ جہاں دعوتوں، تفریحی مقامات پر سیر و تفریح اور دوسری خوشگوار سرگرمیوں سے لطف اندوز ہوتے رہے، چھٹی ہونے کے باعث شہریوں کی بڑی تعداد نے خوب مزے کیے اور صبح کے وقت ناشتے کے لیے مشہور فوڈ پوائنٹ کا رخ کیا۔ لاہور کے ناشتے بہت مشہور ہے اور سب کے ساتھ یہاں ناشتہ کرنے آئے ہیں اور ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے۔ اسپیشل گجرات سے آئے ہیں لاہور میں، گھومنے پھرنے آئے تھے، جہاں صبح ہم ناشتے کے لیے ادھر آ گئے۔ پھر خوش خوراک لاہوریوں نے کہیں حلوہ پوری اور مرغ چنے کھائے تو کہیں روایتی ناشتے کے دیوانوں نے سری پائے، بونگ اور ہریسے پر ہاتھ صاف کیے۔ اس دوران میٹھی اور نمکین لسی ناشتے کا مزہ دوبالا کرتی رہی۔ عید کی چھٹیوں میں تو اپنی فیملی کے ساتھ بڑا مزہ آتا ہے، ناشتہ کرنے کا، گھومنے پھرنے کا۔ چھٹی کے روز گھر سے باہر ناشتہ کرنا لاہوریوں کی روایت ہے جو انہیں لذیذ کھابوں سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ساتھ مل بیٹھنے کا موقع بھی فراہم کرتی ہے۔ عید ہو یا کوئی بھی تہوار، دوستوں اور اپنے پیاروں کے ساتھ کھابے اڑانے کا مزہ ہی کچھ الگ ہے۔ ازکا مقصود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ السلام علیکم ناظرین، ویدر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، موسم کی خبروں میں سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں کہ گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ سکردو اور مضافات کے علاقوں میں رات سے بارش جاری ہے، جس سے علاقے کا موسم سرد ہو گیا ہے۔ سردی بڑھنے کی وجہ سے لوگوں نے گھروں میں ایک بار پھر ہیٹرز کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ بارش کے باعث آج اسلام آباد اور دیگر شہروں سے سکردو کی پروازیں بھی منسوخ ہو گئی ہیں۔ مٹی کے تودے گرنے کے خدشات کے پیش نظر انتظامی حکام نے سیاحوں اور مقامی افراد کو سفر میں احتیاط برتنے کی ہدایت کی ہے۔ سوات کے علاقے بحرین میں شدید بارشوں کے بعد پاک فوج کا ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ تحصیل بحرین میں لینڈ سلائیڈنگ کے بعد سڑکیں بند ہو گئیں اور بحرین سے کالام روڈ بلاک ہو گئی۔ پاک فوج کے جوانوں نے ضلعی انتظامیہ اور NHA کے ساتھ مل کر لینڈ سلائیڈنگ سے متاثرہ سڑکوں کو صاف کر کے ٹریفک بحال کر دی ہے۔ پاک فوج کی جانب سے گزشتہ تمام رات کام جاری رہا۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ پاک فوج عوام کی خدمت کے لیے پرعزم ہے اور علاقے میں آمد و رفت کی مکمل بحالی تک سرگرم عمل رہے گی۔ گوادر کے سب ڈویژن پسنی میں بارش نے تباہی مچا دی۔ 4 گھنٹے سے جاری بارش نے پوری آبادی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ پسنی بازار میں پانی دکانوں میں داخل ہو گیا ہے، جس سے تاجروں کو مالی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ بارش سے زوبک محلہ میں مکان کی چھت گر گئی اور سکول کی 4 دیواری بھی منہدم ہو گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پسنی میں اب تک 89 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ دوسری جانب اوماڑا اور گردونواہ میں پہاڑی سلسلے میں شدید بارش سے ندی نالوں میں شدید طغیانی سے مکران کوسٹل ہائی وے ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے پنجاب اور بلوچستان میں بارشوں اور آسمانی بجلی گرنے کے مختلف واقعات میں جانی اور مالی نقصان پر اظہار افسوس کیا ہے۔ وزیراعظم نے حادثات کے نتیجے میں ہونے والے جانی اور مالی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے جاں بحق افراد کے لواحقین سے اظہار تعزیت کیا ہے۔ وزیراعظم نے NDMA سمیت دیگر متعلقہ اداروں کو متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں تیز کرنے اور زخمیوں کو ہر ممکن طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ آج سے خیبر پختونخوا، بلوچستان، اسلام آباد، پنجاب، کشمیر، گلگت بلتستان اور بالائی سندھ میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش، جبکہ شمالی علاقوں میں پہاڑوں پر برف باری متوقع ہے۔ آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران تیز بارش سے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے علاقوں میں طغیانی، جبکہ بالائی خیبر پختونخوا، مری، گلیات، کشمیر اور گلگت بلتستان میں لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خدشہ ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، بلوچستان، پنجاب، کشمیر اور بالائی سندھ میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں۔ موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔ السلام علیکم، کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں محمد انیس۔ پاکستان کے خلاف 5 میچز کی T20 سیریز کے لیے نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم اسلام آباد پہنچ گئی ہے۔ PCB حکام نے کیوی ٹیم کا استقبال کیا۔ نیوزی لینڈ ٹیم کا دورہ 14 سے 28 اپریل تک
14 रोज पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस की T20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जाएगी। सीरीज के 3 मैचेस रावलपिंडी जबकि 2 मैच लाहौर में खेले जाएंगे। रावलपिंडी में मैचेस 18, 20 और 21 अप्रैल को होंगे। लाहौर में 25 और 27 अप्रैल को मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल से पिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन का आगाज करेगी। कीवी टीम 16 अप्रैल से प्रैक्टिस शुरू करेगी। दोनों टीमों के कप्तान 17 अप्रैल को न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। हेली मैथ्यूज की क़यादत में वेस्ट इंडीज़ वुमेन्स क्रिकेट टीम कराची पहुंच गई है। वेस्ट इंडियन खवातीन क्रिकेटर्स निजी एयरलाइन के जरिए कराची पहुंची। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट स्क्वाड ने कराची के मकामी होटल में रिपोर्ट कर दी है। कौमी वुमेन्स टीम आज से जबकि वेस्ट इंडीज़ खवातीन कल से ट्रेनिंग का आगाज़ करेंगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ वुमेन्स क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 वनडे और 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। सीरीज का आगाज 18 अप्रैल से नेशनल बैंक स्टेडियम में होगा। वनडे मैचेस ICC वुमेन्स चैंपियनशिप का हिस्सा हैं। T20 वर्ल्ड कप के आगाज में 48 दिन बाकी रह गए हैं। ICC ने इवेंट के ऑफिशियल तराने का टीजर जारी कर दिया है। गुलकार शॉन पॉल और कैस तराने में अपनी आवाज का जादू जगाएंगे। This moment is all that I've been dreaming of. पाकिस्तानी रेसलर इनाम बट एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप से कबल इंजरी का शिकार हो गए। कौमी रेसलर कजाकिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में एशियन चैंपियनशिप के लिए लगाए गए कैंप में कंधे की इंजरी का शिकार हुए। इंजरी के बायस इनाम बट चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं ले सके। पाकिस्तानी पहलवान एशियन चैंपियनशिप में मेडल्स की दौड़ में भी शामिल न हो सके। पाकिस्तान के 4 पहलवान अब एशियन ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड में शिरकत करेंगे। क्वालिफाइंग राउंड 18 अप्रैल से बिश्केक में ही होगा। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेटर आलिया रियाज रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गई। ऑलराउंडर आलिया रियाज और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वकार यूनुस के छोटे भाई कमेंटेटर अली यूनुस के निकाह की तकरीब लाहौर में मुनक्किद हुई। तकरीब में कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम, सिलेक्टर्स वहाब रियाज, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक, साबिक चेयरमैन PCB रमीज राजा, साबिक क्रिकेटर्स इंजमामुल हक, मुश्ताक अहमद, मिसबाउल हक, कमरान अकमल, उमर अकमल, इमरान नज़ीर और कौमी वुमेन क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों ने शिरकत की। खेलों की खबरों से इतना ही। अब आपके लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ और एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए PTV न्यूज़।